Success is like shadow. Chase it and it runs away. Walk steadily and it follows you. Good evening and a very, very warm welcome each and every one on Supergrad's YouTube channel. We have one more success journey in front of us, and today we are going to decode it. We have someone who made Inside I Am Indore, Advik Mali, directly joining from Mumbai. How are you doing, Advik? And very warm welcome to the family as well. Congratulations to all three of you. मुझे बताइएगा, how are you feeling? So, Advik, first of all, you tell me how was that particular day when you actually saw your result? What was your immediate reaction? Well, sir, it was obviously a dream come true. I was happy, but I was happier on the day I got to know the marks Okay. because it was more. I was more anxious back then because the marks part was the main important part, and I got above expectations and above which I expected. So the result on the result day, it was a bit expected that I would get in. Uh, so I was happy, but I was happier on the day I got to know the marks. ओके सर मैम मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि उस दिन जब आपको ये पता पड़ा कि आपका बेटा आई एम इंदौर के अंदर जाने वाला है, क्या रिएक्शन था? क्या खुशी मन रही थी? सोसाइटी में क्या माहौल था? फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या माहौल था? हम लोगों ने अपर साइड में आई एम रांची एक्सपेक्ट किया था, ओके सर। लेकिन आई एम इंदौर का सपना नहीं देखा था, क्योंकि क्या वहाँ जो फाइट है, जो पीयर टू पीयर कॉम्पिटिशन्स है एडमिशन्स के लिए, जो मॉब आता है वो मालूम था। जो इतना इंटरव्यू मिला कि क्योंकि ना अद्विक का इंटरव्यू पार्ट थोड़ा वीक था, ओके। स्कोर्स अच्छे थे, तो ये श्योर नहीं था कि होगा करके। ओके। तो जब रिजल्ट आ गया, मालूम पड़ा इंदौर हो रहा है करके, तो ना एक्सपेक्ट करने की वजह से हो गया काम। तो इसका जो माहौल था, तो माहौल ही पूरा चेंज हो गया कि जम्मू हो गया, भी हो गया, रांची भी हो गया, और और इंदौर भी हो इंदौर गया। भी हो गया, ऐसे ही। Great, great, great. और I think it's the happiness getting doubled when you actually know that मैं expect कर रहा था रांची तक जाना, but you're actually getting inside I am Indore. All right, Advik, my next question to you: when did you get to know about IPM? First, my first question, and how did you join Supergrads? कौन से batch में थे तुम? And if we can unfold that particular journey once again. Well, I got to know about Supergrads from my friends, obviously. Right. He was at Supergrads, and in 11th, I had to change my class because my previous class wasn't that good. And he referred me to Supergrads, and I joined them. I was in the 2-year batch, JOS Comprehensive Offline batch at Navi Mumbai Center. And at Supergrads, I found one of the best peer groups I could, and they have been, and the faculties obviously were motivating me. They expected much from me, more than I had thought about myself, and I was able to achieve it. And my peer group, as I said, was one of the best, and four of us we were there. All four got into one of the one got into Rohtak, two got into NMIMS. Okay. So that was the main part. Okay, all four of you now happy, right? And all four Yeah, were very good friends. All were from Supergrads Navi Mumbai Center only? yeah, yeah. Okay, great. Great to know this. What was the lowest point in the preparation? I mean, I just want to know because it's not a smooth journey. You prepared with Supergrads Navi Mumbai Center for 2 years, right? I'm quite sure कोई तो लो मोमेंट आया होगा एंड आई थिंक अभी भी सर ये मुझे कह रहे थे कि लास्ट मोमेंट तक एक्सपेक्टेड था कि आई एम रांची होने वाला है सो it's a happiness getting double fold when when you really know that you're getting a college that's above your expectations. So कुछ ना कुछ lowest moment जरूर आए होंगे. I just want to know about those Yeah. moments as well. Yeah. My lowest moment, I would consider it like for 2-3 months, I was stuck at a same score Okay. around 170. Okay. So till this year only, December, and like from October year end, I was stuck at 170, and I wasn't able to progress a bit. Then I took a gap, मतलब boards के लिए, and after the 2-3 months when I began my journey once again, I shifted my tactics and overcame my challenges, and Okay. my score improved. Your score improved then. Okay. Yeah. I would like to know, since you are preparing for boards as well, it's very, very essential for students who are listening to you right now, must know what was your strategy of dealing with boards as well as IPM. Which stream were you from and how did you deal with boards?
I was from commerce. I was from state board. Okay. So, being in state board, obviously, I did my IPMAT till November, and I put in all my efforts till then. And after then, I stopped IPMAT completely, stopped the prep, and for the Stop the next prep. 3 months, I prepared for boards because I hadn't touched it till then. So only I went to classes and I hadn't touched it. So for 3 months, I did a board study, and then when I began my study, I completely focused on giving the mocks and everything. I would like to tell students to be cautious because it's a risky strategy. बिल्कुल, it has been a very different strategy where you were not studying for boards first, Yeah. then you actually started for IPM. Oh, sorry, then you were preparing for IPM, then you started for boards, then you stopped. And but however, it's a risky thing, but it worked really well for Advik. Ma'am, I would like to know from you because you haven't spoken till now. कि घर में कैसा माहौल था एंड वर यू फोकस्ड वर यू नोइंग फ्रॉम विद इन कि अद्विक निकाल ही लेगा और आईएम में पहुंच ही जाएगा और कौन से आईएम में पहुंचेगा इफ यू वर नोइंग दैट मुझे पहले से मालूम था अद्विक इंदौर के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए। मैं तो पहले से उसको बोल रही थी मुझे अच्छा इंदौर ही चाहिए, तो कुछ भी कर ले इंदौर के लिए वो उसका प्रिपरेशन करना, क्योंकि वो उसका डेडिकेशन बहुत अच्छा था, वो ओके कंसिस्टेंसी था, वो हर मॉक उसको टारगेट दिया था उसके डैडी ने, वो मॉक देता ही था, कुछ भी हो जाए घर में कुछ भी रहे कुछ, वो मॉक देना ही है मौके उसको, नहीं है वो तो वो करता था। ओके उसका वो स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करता है, वो हार्ड वर्क अच्छा मीन्स डे टू डेली स्टडी करना ऐसे नहीं, वो स्मार्ट वर्क बहुत करता अच्छा है। हाँ, डेडिकेटेड है, और उसने वो बराबर कॉलेज का स्टडी और सुपर ग्रेड क्लास का उनका जो स्टडी था वो सब बराबर से किया उसने। राइट सक्सेस तो मिलना ही था, मैं 100% थी, वो ओके थोड़ा श्योर नहीं था। for sure नहीं था so they are from Mumbai that's why ma'am is saying कि college का study because over there junior colleges exist and they there is no school phenomenon like rest of the India but rest of the India is watching it they may be confused कि 12th boards की बात हो रही है फिर college क्यों बोला मैडम ने इसलिए so I'm giving a clarity over here I would like to know from you Advik now if you can pitch in over here so your mom clearly mentions that you do a smart work if some smart work tactics you can share it with the student and the audiences that are listening to you right now. It's going to be helpful for them. Some tactics that you actually used while you were studying. Well, sir, the most important tactic of mine was give many mocks. Okay, I have given among Indore, Jipmat, and Rohtak included. I have given around 150 mocks, okay. and और सुपर ग्रेड्स के सारे marks लिखे थे yeah, for the 2 years, I have given both the. I was both the in cycles the of 2 year batch, mocks. so I Okay, have given all mocks available on the website, okay, and it has been very helpful because over the time you develop new tactics, your solving time reduces. You solve extra questions, then you figure out what's your weak point, what you have to skip, because skipping is the most important thing over here. right. So knowing what to skip is important, and doing it on the timer in 40 minutes is also important. So developing it is for developing this, all mocks are very important. All right. Uh, I would also like to know, I would like to know whether actually Supergrads helped or not. And how was the center like? Who all were the teachers who were behind your success? If you can take name of all of them. And how did they actually help you reach today inside I'm in DOS campus? Well, Super Grad Center was awesome. Obviously, as I mentioned, the peer group was very good. The teachers, well, my first mentor was Sakshi ma'am. Then she left after some time, but she was the first one who believed that I could cross 200. And even then, I didn't believe that I could reach that score. Okay. So she was like, you can do it. And apart from her, Jinal ma'am, Amit sir, Meghna ma'am also, Nilesh sir, Meghna ma'am also helped during the interview stages. They all were supportive, and they have all been through my journey together with me. That's great. Now I would like to know, सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तभी बच्चा निकाल पाता है और मैडम भी अभी बता रही थी कि आप स्ट्रिक्ट थे कि मॉक्स लिखना है अद्वैत के ऊपर आपने क्या क्या पाबंदियां लगाई थी और क्या क्या रियायत दी हुई थी अद्वैत को ड्यूरिंग दीज 2 years
ऐसी कुछ पाबंदियां लगाई नहीं थी, हम्म। लेकिन फरवरी 24 में उसने ज्वाइन किया। वहां से दिसंबर तक उसने 70 अराउंड मॉक्स दे दिए थे, अच्छा। वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। ये ओके। मॉक का कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन किया, लेकिन फिर भी उसका स्कोर 170 80 के अराउंड ही रिस्ट्रिक्ट था। ओके। हमने जो डेटा है सुपर कैट्स ऑनलाइन पे वो सब पूरा यूटिलाइज किया। मैंने आप उसने मॉक दिए, मैंने आपका हर एक वीडियो देखा हुआ है। अच्छा, मेरा भी वीडियो डे देखते हैं आप? वन पे, हाँ, डे वन पे या विद इन 4 आवर्स, लॉन्च होने के बाद विद इन 4 आवर्स। तो मुझे इतना मालूम था कि जो 812 स्टूडेंट्स कट ऑफ क्रॉस करते हैं उसमें से 400 स्टूडेंट्स का यानी 50% स्टूडेंट्स का किसी न किसी आईएम में एडमिशन हो ही जाता है, क्योंकि उतनी सीट्स अवेलेबल है। तो ठीक है। अद्वैत का कहीं ना कहीं हो जाएगा ये मुझे मालूम था, लेकिन एक फिंगर नहीं रखा था कि इसी इंस्टीट्यूट में होगा, इंदौर में ही होगा करके। अच्छा। क्योंकि क्या कंपटीशन वो लेवल पे जिपमेट के ऊपर रोहतक है, रोहतक के ऊपर इंदौर है, तो कंपटीशन उतनी टफ थी। सिर्फ वो स्पीड अप वीआरसी में जो स्कोर करता है वही वो अंदर जाता है, उसका एडमिशन श्योर हो जाता है। तो वीआरसी वो 90 और 100 के ऊपर नहीं जा रहा था। उसके लिए एक मार्च के बाद उसने कुछ टैक्टिक थोड़ा चेंज किया। हम्म। उसने कंसिस्टेंटली वीआरसी के सेक्शनल मॉक दिए और 10 मॉक दिए, अच्छा। और 1 मार्च के बाद 12 मई तक उसने 70 मॉक दिए कंसिस्टेंटली, डेली 1 मॉक। और लास्ट में उसने सब एनालाइज भी की कि क्या गलत जा रहा है। उसके बाद में उसका स्कोर अप हो गया। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है सर, आपको इतना इन डेप्थ कैसे पता है? अच्छा, दो तीन सर, चीजें मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि हाँ, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होना। इट्स वेरी वेरी यू नो सरप्राइजिंग फॉर मी। आप यहाँ पर चार चीजें कहे, आपने ये कहा कि इसने इस डेट से इस डेट तक ज्वाइन किया, फिर आपने हाँ, बैकएंड का जो सुपर ग्रेड्स का मॉक एनालिसिस वाली बात कही, वो भी आपको हाँ, पता है, फिर आपने हाँ, मुझे ये वाली चीज भी बताई कि फिर इसने सेक्शनल मॉक्स दिए, फिर हाँ, आपने ये भी कहा while we were having a conversation कि आपने मेरा हर वीडियो विद इन 4 आवर्स ऑफ लॉन्च देखा है। इतना हाँ, इतना इन डेप्थ पेरेंट को जाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ये बैकएंड है वो इतना सॉलिड था हाँ, अड्विक का आपके फॉर्मेट में। हाँ, तो तो मैं कॉमर्स मैं बस, मेरा क्वेश्चन भी ग्रेजुएट एक बहुत सिंपल है, हूँ। अगर आप, क्योंकि आप मेरे हर वीडियो को देख रहे हैं, आप हाँ, अद्विक की पूरी पढ़ाई के साथ चल रहे हैं, इसकी हाँ, इसकी जरूरत क्या पड़ी, और क्या आपको लगता है अगर पेरेंट ऐसा ही करे तो उसका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ सर, स्टूडेंट से ज्यादा पेरेंट्स का अवेयरनेस ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है। अर्ली डिसीजन जो है वो अधिक को हेल्पफुल रहा। उसने अप्रैल 2023 10th होने के बाद ही से प्रिपरेशन चालू किया था। उसको 3 सब्जेक्ट में स्टडी करने थे। उसने वो टाइम में वेकेशन में उसने रीजनिंग का पूरा स्टडी कंप्लीट कर लिया था, बैलेंस बचा वर्बल एबिलिटी और मैथ्स। हाँ। उसके ऊपर वो 2 साल फोकस कर पाया। February 24 में ज्वाइन किया उसने यहाँ, क्योंकि उसको मैनेजमेंट करना है। वो डिसीजन 10 के बाद ही उसका फाइनल हो गया फाइनल था। हो गया था। अच्छा। हाँ, और एक बार सुपर गाइड्स में एंट्री करने के बाद जो है, उसका पूरे मटेरियल उसने कंज्यूम कर लिया। जो 24 का मटेरियल अगस्त तक लाइव रहता है वो कंप्लीट किया। बाद में आगे का मटेरियल, और टाइम टू टाइम आप जो वीडियो अपलोड करते रहे, गाइडलाइन देते गए, उसमें डेटा मेरा क्लियर हो गया कि कट ऑफ क्रॉस करने के बाद 50% स्टूडेंट्स का एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है। ये अच्छा। नहीं बोल सकते कि इसी में होगा करके, इसी में ओके। होगा। वो उसका लक फैक्टर, या वो टाइम में सरवाइव कर पाया, इसके लिए हो गया। अदरवाइज उसका 4 इंस्टीट्यूट में जम्मू, बोधिया, रांची और इंदौर में हो गया उसका एडमिशन। ऐसे। ग्रेट जॉब, आई थिंक। मुझे ना दो तीन चीजें समझ में आ रही हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन विद अद्विक एंड हिज फादर. His Advik's entire algorithmic support was his father. या, He was keeping a closed eye and close watch on what Advik was doing for 2 years. Not only that, before that also he's saying that he played a role, that when decision was being made by Advik that ये management करने वाला है, and to a point that अद्विक के फादर ये कह रहे हैं कि ही वॉज क्वाइट थिंकिंग दैट आई एम रांची हो जाएगा, आई एम इंदौर के बारे में श्योरिटी नहीं थी। मतलब आप समझ के देखो उनकी जो स्टडी थी कितनी स्ट्रांग थी। सो एक फादर ये बता ले कि अद्विक कहाँ जाने वाला है, बट यस उसके ऊपर मिल गया उसको, इट वॉज हिज लक। सेकेंडली, आई ऑल्सो लाइक टू मेंशन अबाउट हिज पियर्स, ही इज क्लियरली मेंशनिंग दैट यार देयर वर 4 पीपल इन द ग्रुप। पियर्स का भी रोल कितना स्ट्रांग होता है। Two of them got inside NMIMS and they made into the big college, Anil Surendra Modi.
one got into some other IIM, and there's a fourth one who is Okay. getting inside IIM Indore. I think it has been a fantastic journey where people have played role apart from Advik. His father, as well as his friends, have played a very, very dynamic role over here. I can actually watch it from this particular interview. And nice talking to you, sir, क्योंकि शायद आप लोगों की वजह से ही हमारे वीडियोस चलते हैं. पेरेंट्स जितना देखेंगे, पेरेंट्स जहां जितना अवेयर रहेंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. तो ये डिस्कशन शायद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ से वो सही जगह पे जा रहा है, और शायद, और मैं जरूर आप लोगों से फीडबैक भी लूंगा, अगर आपको कुछ चेंज चाहिए मेरे काम में तो जरूर हम वो भी लेके आएंगे. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू एज अ फैमिली, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू, एज अ फैमिली दिस सक्सेस स्टोरी वाज मेड, जहां पर मैडम से का रोल मैंने नहीं जानना चाहा क्योंकि वैसे ही काफी सारा रोल हर किसी का सामने ऑन द टेबल आया है, बट एज अ फैमिली सक्सेस लेनी है, आई एम इंदौर के अंदर जाना है, तो क्या करना चाहिए? दो दो सेंटेंसेस अद्विक से स्टार्ट करते हैं, फिर सर आपके पास और मैडम फिर आपके पास, प्लीज. कंसिस्टेंटली स्टडी ऑब्वियसली, एंड अब उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर या जो पसंद है वो एक करना ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना फोकस नहीं रहता. एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए. चाहिए. my part was to study, their part was to lead the path. ओके. सर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस जर्नी में, दो तीन सेंटेंस बताइए कि फादर का रोल क्या होना चाहिए. So just a single sentence, sir. Early start. अर्ली स्टार्ट. आपका डिसीजन प्रीमेच्योर होना चाहिए, पहले ही डिसीजन होना चाहिए 10 के टाइम में, 9 के टाइम में, कि मुझे ये पाथ पे जाना है. जो डिसीजन पहले लेगा उसका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है. बढ़ जाता है. जो डिसीजन 3 या 6 महीना पहले लेगा उसको रिपीटर करके सेकंड ईयर में सेकंड चांस लेना पड़ता है कि मैं और प्रोग्रेस कर पाऊंगा. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखना है तो 10 के बाद इमीडिएट पढ़ाई चालू कर देंगे तो लास्ट का बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ बर्डन नहीं आता है. जैसे कि अद्विक के केस में घर में कुछ भी प्रेशर नहीं था स्टडी का, क्योंकि उसने स्टार्ट ही बहुत पहले किया था. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल. हाँ. एंड मैम आपका रोल क्या था? बिकॉज मैंने आपसे बातचीत नहीं करी क्योंकि कहीं ना कहीं फादर के रोल पे हम लोग बहुत इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में. प्लीज, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, मदर्स को पता होना चाहिए इनफैक्ट. हाँ, अद्विक का स्टडी पैटर्न मुझे पहले से मालूम था क्योंकि उसने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे स्कूल के टाइम में. अच्छा. तो मुझे मालूम था वो कर सकता है. पॉजिटिव एटीट्यूड मेन है जो उसने खुद, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था कि मैं ये करूंगा. की वजह से हम लोग सपोर्ट तो है, हम लोग Support उनकी is the सपोर्ट important तो part, उसके yeah. साथ कंटिन्यूस ही थी. Okay. I Same think a कर great दिया. interview. I think great interview from Mali family. I think they have clearly proven that it was not a one person effort. In fact, मुझे यहाँ पे एक पूरी की पूरी फैमिली का एफर्ट, एंड in fact फ्रेंड्स का भी दिख रहा है, क्योंकि अद्विक मेंशन कर रहा है उनको भी, और साथ साथ फिर मेंटर्स का, एक एक मेंटर का नाम लिया यहाँ पर. ग्रेट जॉब नवी मुंबई टीम. मेघना सर और मैम. एक या या कहना प्लीज पाऊंगा मैं, हाँ बताइए प्लीज. जो स्टडी मटेरियल में आपके मटेरियल मॉक के थ्रू गया उसके डिफिकल्टी लेवल के नीचे ही जो एग्जाम थे 5% नीचे ही थे. जहां तक Okay. मैंने स्टडी किया, जिपमैट का हो, रोहतक का हो या इंदौर का हो, ओके. सभी में इसने अच्छे मार्क हासिल किए. जिपमैट में तो 326 मिले, रोहतक में डिक्लेयर नहीं किया लेकिन अराउंड 400 रहेंगे, ओके. इसमें भी 221 तक गया. लेकिन Okay. जो भी मॉक थे, मॉक पैरेलल थे, थोड़े अबोव थे. तो मटेरियल इज द बेस्ट. उसके अलावा स्टूडेंट को आजू बाजू में और कुछ देखने की जरूरत नहीं जरूरत ही है. नहीं है. कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, टोटली रिलाई कर सकते हैं स्टूडेंट मटेरियल के ऊपर. और ये चीज एक और पेरेंट्स से आ रही है, मुझे हाँ. खुशी इस चीज से हो रही है कि अद्विक से ज्यादा अद्विक के फादर ये चीज कह रहे हैं. मतलब हाँ. इन डेप्थ बोली स्टडी क्या किया है उन्होंने शायद आपको. सर, उसका मॉक होने के बाद उसके कंप्यूटर पे मैं बैठता था, उसका इवेल्युएट करता था, उसमें कौन से सेक्शन है वो कंटिन्यूअस अच्छा. मैथ एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर, उसमें उसका स्कोर कंटिन्यू 100 जा रहा था. तो वो अच्छा. फाइनल में 90 क्रॉस करेगा ये मुझे मालूम था. सिर्फ शॉर्ट आंसर में ऑफ हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इसके लिए इसमें थोड़ा कम हो गया, टोटल 91 आ गया. और वीआरसी उसको 100 क्रॉस नहीं कर पाया था, तो उसने सेक्शनल कंसेक्यूटिवली 10 सेक्शनल मॉक दिए वीआरसी के, उसके बाद में उसका अप हो हेड्स गया. ऑफ टू यू और जो सर. नया मैं पहला किस्सा ऐसा मेरे सामने आ रहा है जहां पर
मॉक Okay. एनालिसिस फादर कर रहे हैं but yes, it has proven to be a success कहीं ना कहीं. On that particular note, I think parents, हम हमेशा कहते हैं as an institute, जहां पे भी parents vigilant रहते हैं वहां पर students successful होते हैं. And ये एक जीती जाती मिसाल है उस चीज के लिए. Thank you to Thank you. Mari family, all three of you, for and a fantastic interview, will be remembered for long. I'm sure. मुझे तो हमेशा ये इंटरव्यू हमेशा याद रहेगा. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks.